Here we have already discussed what are do you mean by this Raoult's law. Raoult's law हम लोगों ने पढ़ लिया है. All the component vapor pressure of the solution directly is equal to the sum of the pressure of both the component A and B. So this Raoult's of PA equal to P naught A XA plus P naught B XB. So this can XB, we know very well XA plus XB equal to 1. So XB can be written as 1 minus XA. This is a linear graph, and this can also be written in this form also. So the graph for Raoult's law, if we plot a graph between the vapor pressure and mole fraction, suppose this is the mole fraction of XA, initial mole fraction of XA 0. As we increase the mole fraction 0.2, 0.4, 0.6, 0. and 1, so vapor pressure will increase. Similarly, suppose this represent the mole fraction for the B. So suppose initial mole is 0, the vapor pressure is 0. As we increase the mole fraction, the vapor pressure will increase, and this represents the vapor pressure of the solution. And we know very well PS equal to PA plus PB, and PA can be written as P naught A XA plus PB can be written as P naught B XB. This represents the linear graph between the vapor pressure and the mole fraction according to the Raoult's law. So this represents the linear. Okay, now there are basically two types of solution. One is your ideal solution and another one is your non-ideal solution. The solution which are ideal, there is no change in the intermolecular forces. They are ideal. Suppose we add 40 plus 50, then it is equal to 90. There is no increase in the volume of the mixture. Volume mixture will remain 0, constant. Okay, pressure mixture will also remain constant. Enthalpy mixture will also remain constant. This is the example of ideal solution. The solution which follows the Raoult's law are the ideal solution, and if suppose the solution is not ideal, then it shows the deviation. And there are basically two kinds of deviation. One is your positive deviation, and another one is a negative deviation. Suppose we add two components in a solution, and if there is a positive deviation, what happens? If you add, suppose one component having the value 40 and another one is 50, then the mixture will be 93, something around 93. You cannot write this kind of examples in the answer sheet, but here for understanding point of view I am just taking the example. Suppose 40 plus 50 equal to 93. So this represent plus 3 represent the positive deviation. What happened here? The intermolecular force decreases if we take two kind of component and we mix the component. Suppose then the intermolecular force decrease हो जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बॉन्ड जैसे मॉलिक्यूल दूर दूर आएंगे, बॉन्ड टूटने से तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम मिक्स इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा पी मिक्स भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और पॉजिटिव समहाउ इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्स भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. इसका एग्जांपल है H2O को आप अल्कोहल में ऐड करो, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन. या अल्कोहल को आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में ऐड करो, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल हो जाएगा. पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा? सपोज दिस इज अ PA, तो पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा? ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा. This represents the example of positive deviation. Okay. Now the example of negative deviation. What happened in the case of negative deviation? Intermolecular force. अगर हम दो कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं और उनमें intermolecular force क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वॉल्यूम मिक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, प्रेशर मिक्स भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और एंथैल्पी मिक्स भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. और इसका एग्जांपल H2O प्लस इनऑर्गेनिक एसिड HF HBr acid. These all are the example of inorganic acid. From positive deviation there is also a concept of azeotropic mixture arises. What do you mean by azeotropic mixture? The question can be asked in ISC board. For CBSE board, the question from this topic is continuously asking by the board exam. In the board exam, so the mixture means all the component must have identical boiling point. अगर कोई एक solution उसके बहुत सारे component हैं, उन सबके boiling point अगर same है, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. नोट है वहां पर कि द कंपोनेंट ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टिलेशन मेथड. जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, सो द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड. इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग. इसी के साथ हमारा पार्ट बी, जो कि हमें सॉल्यूशन में 4 पार्ट्स में पढ़ना, तो उनमें से पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी. पार्ट ए में हम लोगों ने पढ़ा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज W by V, परसेंटेज W by V, सब बेसिक फार्मूला. पार्ट बी में हमने पढ़ा वोलेटाइल, जो इवेपोरेट हो जाए आसानी से. उसमें हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, राउल्ट्स लॉ के बाद पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा.
आइडियल में फिर जो आइडियल नहीं उन्हें क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेविएशन होती है, जो है पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है पार्ट सी। पार्ट सी में इन दिस पार्ट नोट डाल के हम लोग लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं, इन दिस पार्ट all the component are non-volatile. Non-volatile. Non-volatile means they जो भी जितने भी हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो सब कैसी पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज which depend upon the number of moles, which depends upon the number of moles. So what are the colligative properties? First is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Second one is depression in freezing point. Numerical यही से आता है बोर्ड में. Depression in freezing point. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Osmotic pressure. Osmotic pressure. यहां से न्यूमेरिकल आता है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट को लेते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहला पार्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हमें पता है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। सपोज ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज H2O का। अब हमने क्या किया, H2O में अगर हम ग्लूकोज को ऐड कर दें, ग्लूकोज को ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो H2O का पहले बॉइलिंग पॉइंट मान लो TB था, अब क्या हो जाएगा, TB डैश हो जाएगा अगर हम ग्लूकोज ऐड कर देंगे। मान लो H2O का पहले वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा था और अगर हमने H2O में ग्लूकोज ऐड कर दिया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इंक्रीज हो गया। क्योंकि अगर हम लोग कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करते हैं H2O में तो क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TB। एंड डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैरिटी। You know very well colligative properties depend directly proportional to the moles, which depend upon the number of the moles. So for moles point of view, molarity is used here. So delta TB directly proportional to m. So delta TB equal to one constant it will be added, that is Kb. Kb is a ebullioscopic constant, or we can say molar elevation constant. Molar elevation constant. So Kb is a ebullioscopic constant or a molar elevation constant. So this formula can be written as delta TB is equal to Kb. In place of molarity we can write the formula gram upon molecular weight into kg solvent. kg solvent. तो आप इसी तरीके से फॉर्मूले को याद रखें, बस इतने मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ लिया, व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे कंटीन्यूअसली न्यूमेरिकल हमारे आईएससी बोर्ड में 2 या 3 नंबर में आते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर इस पे सॉलिड और लिक्विड सबके फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसे क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी गिरावट आएगी। तो सपोज फ्रीजिंग पॉइंट, अब यहाँ पर हमें पता है वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम किसी चीज में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल, यहाँ पर हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहां फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बंद कर दो। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ने के बाद एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है हमारा,
The temperature at which the vapor pressure of solid and liquid are equal known as freezing point। जब हमारा किसी सॉलिड जैसे आइस और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर में क्या इक्वल हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जांपल हो गया आइस और वाटर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए बराबर हो जाए उसे क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब मान लो कोई H2O है, अब उसमें क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो क्योंकि हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमें इंक्रीज कर मतलब H2O में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो हमने जैसे ग्लूकोज ऐड किया था तो क्योंकि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी है, इसीलिए हमने पहले भी कहा था मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम एक कांस्टेंट लगाएंगे तो उसे बोलते हैं केएफ। केएफ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ने थे। पहला हमने पढ़ा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी, फिर हमने पढ़ा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका न्यूमेरिकल समहाउ थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिवली, लेकिन कुछ ज्यादा कठिन नहीं है इसमें भी। इसमें हमारा क्या है, क्योंकि हमारा ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इस पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल, मतलब इसमें क्या है कोई भी चीज हमारी इवेपोरेट नहीं हो रही, तो जो सॉल्यूट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट क्या होगा, जीरो। सिंपल सी बात है, मतलब अगर प्योर स्टेट में अगर हमारा सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर, वेपर कोई चीज इवेपोरेट ही नहीं हो रही, वोलेटाइल है ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा हमारा, जीरो। तो हमारा ये जो फार्मूला होता है पीएस का, पी नॉट ए एक्स ए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला करके जो पूरा सॉल्यूशन का है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट ऑफ द सॉल्यूट इज जीरो, तो ये हमारा पूरा ये फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी। सो अगर हम पी नॉट बी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आए तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करें, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों साइड, तो हमारा ये क्या हो जाएगा फार्मूला, ये एक्स से आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स से प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स से, और ये फार्मूला हमारा आ जाएगा ये। चाहे तो हम इसको रिवर्स करके चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी किसी न्यूमेरिकल में कंपटीशन में आ जाता है कई बार एट्रिपली या यूपीट्यूब में, और चाहे तो हम इस फार्मूले को इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये एक तरीके का अल्टरनेट स्टेटमेंट होता है राउट्स लॉ का, अल्टरनेट स्टेटमेंट फॉर द राउट्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक से इसी के बाद हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, पहले हमें जानना पड़ेगा ऑस्मोसिस, यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लेना, वाला टॉपिक है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, इसको देख लेना एक बार, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कैसे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो केमिस्ट्री का यूज है यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर, हमको उस पर फोकस करना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल प्रेशर exerted to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से, और ये प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू NRT होता है। अगर N के नीचे V ले आएंगे तो PV इक्वल टू N अपॉन V, और N अपॉन V क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, क्योंकि मोलैरिटी मोल्स पर लीटर। सो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। याद रखना हमेशा टेंपरेचर केल्विन में लेंगे, R हमारा गैस कांस्टेंट 0.0821। अब हमारे कुछ कंडीशंस रहती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, जैसे आइसोटोनिक के कंडीशन, तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 दोनों प्रेशर क्या होंगे बराबर। हाइपरटोनिक भी होता है जिसमें पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1 होता है, हाइपोटोनिक होता है। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें देखेंगे इसको, ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा पूरी केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका सबसे लास्ट टॉपिक है पार्ट डी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, वैसे तो ये कोई अलग से पार्ट नहीं है, इसका यूज होता है पार्ट सी में, लेकिन इसको हमने अलग से पार्ट दे दिया है पार्ट डी, हमने एक अलग प्रोफाइल बना दी है इसका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एब्नॉर्मल कंपाउंड। एब्नॉर्मल कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड व्हिच आर एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड इन सॉल्वेंट प्रोवाइड। कोई कंपाउंड हमने जो ऐड किए हैं, कंपाउंड है जैसे ऐड किया है, जैसे Na2SO4 है, NaCl है, KCl है, या बेंजीन है, टॉलिन है, कोई भी कंपाउंड सॉल्वेंट में हमने जो ऐड किया है, उसमें क्या होता है, एसोसिएट होगा वो कंपाउंड या फिर डिसोसिएट होगा। तो इससे क्या होगा, जो डिफरेंस आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कंपाउंड का एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्वेंट में। इससे क्या होगा, हमारा कुछ डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए हम एक करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं। उस करेक्शन फैक्टर का नाम है वेंट ऑफ फैक्टर आई। जैसे कि हम लोग लीस्ट काउंट भी यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लेते वक्त फिजिक्स के, ऐसे ही केमिस्ट्री में
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि हमारी वैल्यू एक्यूरेट आए, नियर अबाउट करेक्ट आए, हम लोग एक करेक्शन फैक्टर जो कि लीस्ट काउंट की तरह होता है उसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बेंट ऑफ फैक्टर। और बेंट ऑफ फैक्टर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उन कंपाउंडों के लिए यूज करते हैं जहां पे हमारे कंपाउंड क्या होते हैं, एबनॉर्मल कंपाउंड होते हैं। एबनॉर्मल कंपाउंड क्या होता है? जिसमें डिफरेंस आ जाता है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो एसोसिएट या डिसोसिएट होंगे। तो हमारे आई का फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। अब आई के दो फॉर्म होंगे, या तो डिसोसिएशन होगा या फिर एसोसिएशन होगा। अगर डिसोसिएशन होगा तो हमारा फॉर्मूला आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा क्या है हमारा? वन वो है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस, सॉरी नंबर ऑफ आयंस। और अल्फा क्या है हमारा? ये कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सपोज हमारा कोई चीज है NaCl है, NaCl में हमारा क्वेश्चन गिवन है इट इज 90% आयोनाइज्ड, 90% आयोनाइज्ड। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सपोज NaCl इज 90% डिसोसिएटेड। अगर NaCl हमारा 90% डिसोसिएट हो गया तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पे NaCl जिसके आयंस कितने हो गए? Na और Cl, n की वैल्यू हमारी यहाँ क्या हो जाएगी? 2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अल्फा की वैल्यू क्या है? 90%, तो 0.9 हो गया। तो हमारा i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस अल्फा, जो कि हो जाएगा 1 प्लस 0.9, जो हो जाएगा 1.9। सिमिलरली आपका अगर Na2SO4 है तो यहाँ पर क्या है? 2Na और SO4, n की वैल्यू क्या है? 3। तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट करोगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 अल्फा। और अगर 90% डिसोसिएट हो रहा है Na2SO4 के केस में तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 2 इंटू 0.9, जो कि आ जाएगी हमारी 2.8। तो ये एबनॉर्मल कंपाउंड का यूज क्या हुआ? हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो तो बहुत इजी पार्ट पढ़ा था। जो हमने जो 4 न्यूमेरिकल पढ़े थे, 4 न्यूमेरिकल जो हमने पढ़े थे जो आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बोर्ड एग्जाम में, वो ऐसे हो जाएंगे। जो हमारा फॉर्मूला था ना, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम, या डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम, या फिर हमारा पाई इक्वल टू सीआरटी। इन सब में हमारा करेक्शन फैक्टर आई आ जाएगा, क्योंकि हमारे कंपाउंड रहेंगे क्वेश्चन के साथ साथ गिवन रहेगा। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि NaCl है वो 80% डिसोसिएट हो रहा है, 80% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl 80% है। तो हम लोग डायरेक्टली जो फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करके जो हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू एम, तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा जब तक हम उसमें आई की वैल्यू नहीं निकाल लेते, या फिर कई क्वेश्चनों में सीधे सीधे वो आई की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा हमसे। तो हमारा डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या? आई इक्वल टू डेल्टा टीवी अपॉन केवी इनटू एम। तो हम लोग बोर्ड के सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारे सॉल्यूशन खत्म हो गया है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई और आईएससी के एग्जाम। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल इसके कवर करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा हमने क्या पढ़ा। यहाँ पे हमने थ्योरी कांसेप्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को सारा लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी जो अगर आपको डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं।